Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 25th of October 2021, Monday. Inspiration of the day is be thankful for what you have, you will end up having more. If you concentrate on what you don't have, you will never ever have enough. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let us start with article number 1 given on page number 1. India, UK, Australia to launch new group IRIS. So, in order to promote the infrastructure for resilient island state, three countries, that is India, UK, and Australia, are planning to launch the new grouping of infrastructure for resilient island state, that is IRIS. So in this particular group, the few small island developing states will also be involved. So this particular IRIS grouping will be launched on the sideline of the upcoming COP26. If you remember, we have discussed about the COP26. COP26 stands for Conference of Parties. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि ये COP26 किस पर्टिकुलर कन्वेंशन के तहत हो रही है और अप्रॉक्सीमेटली कितने कंट्रीज पार्ट करेंगे इसमें एंड व्हाट इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ दिस COP26। तो COP26 के साथ साथ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूके और कुछ छोटे से आइलैंड साथ मिलकर के कोलिशन फॉर्म कर रहे हैं, एक इंटरनेशनल ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं। दैट ग्रुप बेसिकली फोकस ऑन infrastructure. Which type of infrastructure? The sustainable and resilient infrastructure that can withstand the natural disaster and lessen economic losses in the island nations. क्यों ऐसा COP के साइडलाइन में ही हो रहा है? क्योंकि COP इज़ मोर कंसर्न अबाउट द इन्वायरमेंट। और अगर इन्वायरमेंट या इकोलॉजी की हम बात करें तो आइलैंड नेशंस जो ऐसे हैं जो कि समुद्री तटों पर स्थित हैं, वो इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी को भी लॉस होता है। तो इसीलिए ऐसे कंट्रीज़ जो कि 3 साइड से या 4 साइड से या हर साइड से समुद्र से घिरे हुए हैं, दे आर कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ कोलिशन। और उस कोलिशन के तहत इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया जाएगा जिससे कि किसी भी तरह के नेचुरल डिज़ास्टर के टाइम पर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कम से कम नुकसान हो। दैट पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी रेजिलिएंट और जो इकोनॉमिक लॉस हो रहे हैं आइलैंड नेशंस को, कंट्रीज़ को, वो मिनिमाइज किए जा सके। एंड डेफिनेटली इट कैन नॉट बी इंटायरली मिटिगेटेड, बट येस इट कैन बी डिक्रीज और इट कैन बी लेसन। तो अभी फ़िलहाल के लिए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूके और कुछ अदर छोटे डेवलपिंग जो स्टेट्स हैं वो पार्ट करने के लिए उन्होंने अपना इंटेंशन जाहिर किया है। लेकिन एज़ पर द न्यूज़ जापान भी इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का पार्ट हो सकता है। सो IRIS स्टैंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये IRIS इज़ ऑन inception stage and resources will be aligned to the requirement of the project as per the National Disaster Management Authority, that is NDMA। NDMA इंडिया में नेशनल डिज़ास्टर या इंडिया में जितने भी जो इकोनॉमिक डिज़ास्टर, इकोलॉजिकल जो डिज़ास्टर्स होते हैं, इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर्स होते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, उनको मैनेज करने का काम करती है ये एजेंसी। और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ही विल बी लॉन्चिंग दिस IRIS grouping at the very same place where COP26 is going to be happen. So in an event on investment and ecology, our prime minister said that small island or developing nations are experiencing the worsening disaster, and definitely they must have the access to the technology, knowledge and assistance that they considered necessary for reducing their economic losses and definitely for withstanding against any sort of natural disaster that is actually arised owing to the environmental degradation। तो फिलहाल के लिए एक ग्रुपिंग का प्रपोजल है, इट इज़ जस्ट अ प्रपोजल, इंसेप्शन स्टेज पर है ये प्रपोजल,
Let us see how this particular coalition will formed besides the COP26. And this is the chart that indicates the value of infrastructure as a percentage of GDP for different small developing islands. And definitely do not need to mug up this data. You can just have the glimpse at how much transport, power plants and water supply, sanitation like infrastructure cost to these island nation. And this particular chart is compiled by World Bank report 2017. Now let us look into the article number 2 that is given on page number 5. Fiscal deficit likely to stay at budget estimate of 6.8%. As per one of the senior official, fiscal deficit is likely to stay at budget estimate of 6.8% of the GDP. It means whatever has been estimated at the time of budget, fiscal deficit is likely to be on that same note, very same note. Why? Because tax collection, in spite of having the robust economic growth or robust economic recovery, has not increased significantly, and definitely it is not going to narrow the gap of revenue and expenditure. हालांकि कई सारे आर्टिकल्स में ऐसा भी कहा गया था कि इस बार का जो फिस्कल डेफिसिट है वो बजटेड एस्टिमेट से कम हो सकता है, बट एक सीनियर ऑफिशियल के अकॉर्डिंग, हालांकि उनका नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया, बिजनेस स्टैंडर्ड में इस न्यूज़ को कवर किया गया है कि उनका ये कहना है कि बहुत ज़्यादा इस बात के चांसेस नहीं है कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो बजटेड एस्टिमेट से कम होगा. जो बजट एस्टिमेट में डिसाइड किया गया था दैट इज़ 6.8% फिस्कल डेफिसिट इज़ गोइंग टू बी फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर. उतना ही रहेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि जितना भी टैक्स कलेक्शन हुआ है इन स्पाइट ऑफ रोबस्ट ग्रोथ वो कोई बहुत ज़्यादा इस पर्टिकुलर गैप को नैरो नहीं करेगा. द फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेटेड बाय बजट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 15.07 trillion in terms of rupees. And as per him, the target would not see any reset in the revised estimates. तो ऐसा कोई रीसेट नहीं करने वाली है, गवर्नमेंट के नंबर्स को रिवाइज करेगी या कम टारगेट सेट करेगी. क्यों? क्योंकि सेंटर का जो अप्रोच है इस समय का, दैट सेंटर इज सिंपली गोइंग टू ओवरशूट इज एक्सपेंडिचर. कैसे? बाय इंक्रीजिंग द subsidies and more specifically on food and फर्टिलाइज़र्स. तो जब डेफिनेटली अगर सब्सिडीज़ इंक्रीज़ होंगी तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करेगा, और एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करेगा तो कहीं ना कहीं फिस्कल डेफिसिट भी इंक्रीज़ करेगा अगर रिवेन्यू उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ता है तो. एंड द इंक्रीज इज़ एक्सपेक्टेड प्राइमरीली ड्यू टू एन एक्सटेंशन ऑफ फ्री फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम टिल द नवंबर. तो जिस तरह से ग्लोबल प्राइजेस बढ़ रहे हैं रॉ मटेरियल्स के, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के, फर्टिलाइज़र्स के, और जिस तरह से गवर्नमेंट ने फ्री फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम को नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया है, तो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए फाइनेंशियल ईयर 22 का जो एस्टिमेट था, फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट था 6.8, उतना ही या उससे अबव जा सकता है फिस्कल डेफिसिट. जो ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि शायद इस बार का जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम हो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज रिवेन्यू कलेक्शन. बट सीनियर ऑफिशियल का ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर भी उसी प्रपोर्शन में इंक्रीज कर दिए हैं इन टर्म्स ऑफ फूड सब्सिडी, इन टर्म्स ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी, owing to the increased raw material and finished good prices at a global levels. However, economists see the fiscal deficit lowered at least half a percentage point that initially target, as we have discussed in number of news discussion as well. But जो official belong करते हैं tax department से, उनका इस particular opinion से सहमति नहीं है. So this is all about the fiscal math. That center fiscal deficit stood at 31.1% in budgeted estimates in the first 5 months of financial year 22. तो जो बजटेड एस्टिमेट्स था सेंट्रल गवर्नमेंट का, यहाँ बात कर रहे हैं, स्टेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो उस एस्टिमेट से 30% या हम कह सकते हैं 31% ज़्यादा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर रहा है, फिस्कल डेफिसिट रहा है. एंड गोइंग फॉरवर्ड द सिचुएशन मे नॉट बी एज रोजी
तो जो दिख रहा है कि टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा क्योंकि इकोनॉमिक रिकवरी बढ़ रही है, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला. एज पर द ऑफिशियल सेंटर टैक्स कलेक्शन रिफंड रोज अप्रॉक्सीमेटली 74.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस, दैट इज 5.70 ट्रिलियन इन टर्म्स ऑफ रुपीज टिल सितंबर 22. तो रिफंड के जो नंबर्स हैं वो भी बढ़ गए हैं. टैक्स जो रिफंड करती है गवर्नमेंट उसके भी नंबर बढ़ गए हैं. 74.4% का इंक्रीज देखा गया. फूड सब्सिडी बढ़ रही है, फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ रही है. तो वन हैंड जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है, बट जो टैक्स कलेक्शन है, रेवेन्यू कलेक्शन है, वो इतना ज़्यादा अमाउंट में अभी नहीं बढ़ रहा है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी रिकवरी की फेज पर है. And because of all these reasons, the fiscal deficit number is not going to be revised, and it is most likely that government will achieve 6.8% of the fiscal deficit target, not the lower target or not the lower level. Now let us look into the article number 3 that is given on page number 8. China aims over 80% non-fossil energy use. तो COP26 की जो मीटिंग होने वाली है उससे पहले बहुत सारे कंट्रीज़ अपने अपने प्लान सेट कर रहे हैं, अपनी अपनी स्कीम सेट कर रहे हैं, ताकि वो COP जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होने वाली है उस पर अपने प्लान को, अपने प्रपोजल को डिस्कस कर सकें. इंडिया ने भी अभी आइलैंड नेशन के लिए ग्रुपिंग के फॉर्मेशन का अनाउंसमेंट किया है. इंडिया इज़ ऑल्सो प्लानिंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी स्कीम्स, जहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जाएगा और जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनका जो यूज़ है और उनका जो प्रपोर्शन है इंडिया के एनर्जी मिक्स में उसको रिड्यूस करने के बहुत सारे प्रोग्राम या स्कीम गवर्नमेंट फ़िलहाल के लिए डिस्कस कर रही है. तो COP26 में हर कंट्री अपना कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा दिखाना चाहती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस नंबर ऑफ कंट्रीज आर नाउ दीज डेज प्रिपेयरिंग फॉर इट. तो चाइना ने भी इसी लाइन में काम करना शुरू कर दिया है. चाइना एम्स टू हैव नॉन फॉसिल एनर्जी कंजप्शन एक्सीड 80% ऑफ इट्स टोटल मिक्स बाय फाइनेंशियल ईयर 2060. तो 2060 तक चाइना प्लान कर रहा है कि उसका जितना भी एनर्जी मिक्स है उसमें 80% एनर्जी जो होगी वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आएगी या नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से आएगी. सो सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी प्लान टू बी कार्बन न्यूट्रल अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन पब्लिश्ड बाय द ऑफिशियल न्यूज एजेंसी ऑफ चाइना. और ये 80% एनर्जी मिक्स को नॉन फॉसिल कंजप्शन से अचीव करने का जो टारगेट है, जो पॉलिसी है चाइना की, दैट इज सिंपली इन लाइन विद इट्स लार्जर प्लान फॉर अचीविंग द पीक कार्बन एमिशन एंड डेफिनेटली रीचिंग द नेट जीरो बाय फाइनेंशियल ईयर 2060 एज पर द न्यूज़ एजेंसी. और जो भी प्रोमिसेस किए थे चाइना ने COP25 में, उन पर्टिकुलर प्रोमिसेस को या भी जो भी कंट्रीब्यूशन के लिए कहा था उसको रीट्रेट करते हुए चाइना ने कहा है कि चाइना स्टिल स्टिकिंग ऑन इट्स गोल फॉर क्लाइमेट फॉर 20 फाइनेंशियल ईयर 25 एंड फाइनेंशियल ईयर 2030 एंड वो टू एक्सेलरेट द डिक्लाइन ऑफ द चाइनाज कोल यूज़. और वैसे भी इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी थोड़ा प्रेशर था चाइना पर, क्योंकि चाइना में कोल का जो यूज़ है, जो फॉसिल फ्यूल एनर्जी कंजप्शन है वो ज़्यादा है, क्योंकि चाइना इज़ ऑन डेवलपिंग स्टेज. जिसकी वजह से और सिर्फ चाइना ही नहीं, इवन इंडिया भी, जो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं दे वांट एनर्जी. और एनर्जी के अगर हम अभी रिन्यूएबल सोर्सेज की बात करें तो वो उतने एफिशिएंटली अवेलेबल नहीं है डेवलपिंग नेशंस में, या उतना एफिशिएंटली यूज़ नहीं होते, या वो टेक्नोलॉजी नहीं है. दैट इज़ वाई इन ऑर्डर टू मीट आउट द एनर्जी डिमांड, एनर्जी रिक्वायरमेंट, countries have to rely on the fossil fuel energy consumption or non-renewable energy sources, and definitely that increase the burden on earth. Apart from it, it also increases the carbon emission, and reduction of carbon emission is one of the primary target or was the primary target of COP25. तो सारे कंट्रीज़ अब COP26 के पहले अपना अपना कंट्रीब्यूशन रिफ्लेक्ट कराना चाहते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि हमने इतना इतना काम किया है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल एनर्जी. और इसी के लिए चाइना एक प्लान पब्लिश करने जा रहा है, 1+N प्लान, एंड दैट विल आंसर द क्वेश्चन अबाउट द कंट्रीज ऑफिशियल रोड मैप फॉर अचीविंग इट्स क्लाइमेट गोल.
according to Z, and refers to the policy addressing all the sector and reasons, and one is that particular part of complete plan. So and one plus n document will address all short of the question that country, or all short of official roadmap will be published under this particular document as per the China. और इसी लाइन में चाइना ने ये भी कहा कि चाइना जो ब्लाइंड डेवलपमेंट कर रहा है, जहाँ पर कार्बन एमिशन को फोकस नहीं किया जा रहा है, इस तरह के ब्लाइंड डेवलपमेंट को चाइना फिलहाल के लिए कर्ब करेगा। तो जो भी हाई एनर्जी कंजप्शन जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो उनसे हाई एमिशन होता है, उनको फिलहाल के लिए चाइना मॉनिटर करेगा और रेगुलेट करने की कोशिश करेगा in order to achieve its climate goal. Now let us look into the few other news clips. Early bird earning rise 24% to touch new high. So India's INC September quarter 2, that is quarter 2 earning season has gotten off to an encouraging start thanks to the large gains posted by the metal and energy companies. तो क्वार्टर 2 के जो रिजल्ट्स हैं कंपनीज इंडिया में पोस्ट, जो इंडिया में फिलहाल जो क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स हैं, कंपनीज हैव स्टार्टेड पोस्टिंग देयर क्वार्टर 2 रिजल्ट्स, और उसके अकॉर्डिंग जो मेटल और एनर्जी कंपनीज हैं उन्होंने अच्छा प्रॉफिट रजिस्टर किया है इन क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22। और इन्हीं मेटल और एनर्जी कंपनीज के प्रॉफिट की वजह से अगर हम देखें तो जो अदर सेक्टर हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इन कंपनीज को जो नुकसान हुआ वो फिलहाल के लिए हाइड कर गया है। और इन कंपनीज को, इन तरह सेक्टर्स को नुकसान क्यों हुआ, अगर हम बात करें जनरल मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर कंपनीज, बिकॉज ऑफ द हायर इनपुट कॉस्ट। इफ़ यू रिमेंबर, कोल की शॉर्टेज थी, जो रॉ मटेरियल्स थी उसके भी ग्लोबल लेवल पर भी और इंडिया में भी उनके जो प्राइजेस थे, कॉस्ट थी, वो बढ़ रही थी। अपार्ट फ्रॉम इट चिप की शॉर्टेज भी थी, जिस सब की वजह से जो इनपुट कॉस्ट रही वो बहुत ज़्यादा रही क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 में। और उसी इनपुट कॉस्ट की वजह से मैन्युफैक्चरिंग और जो कंज्यूमर कंपनी है उनमें प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज किया है। हालांकि मेटल और एनर्जी कंपनीज ने एक अच्छा सिग्निफिकेंट प्रॉफिट रजिस्टर किया है इन क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 एज पर द रिजल्ट पोस्टेड बाय द कंपनीज। The combined net profit of 222 companies that have declared results for quarter 2 of the financial year 22 has been risen approximately 24.1% in comparison to the last year. And if we talk about the biggest gainer companies, the biggest gainer companies were in the field of oil and gas, metal and mining sector, and that is followed by IT sector like Tata Consultancy, Infosys, Wipro, HCL and अदर IT कंपनीज। तो सबसे जो अच्छी ग्रोथ रजिस्टर करी या प्रॉफिट रजिस्टर किया वो ऑयल गैस कंपनीज ने, मेटल कंपनीज ने, माइनिंग सेक्टर की कंपनीज ने रजिस्टर किया, जिसके और इसके बाद IT सेक्टर ने भी एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी है, मोर स्पेसिफिकली TCS, Infosys, Wipro and HCL. Now let us look into the next clip. Government aims big for LIC IPO inspired by Zomato. So taking a cue from Zomato's stellar initial public offer, that is IPO, through which it garner a valuation of approximately 1 trillion rupees. और इसी को टारगेट करते हुए, या हम कहते हैं इसी से इंस्पायर्ड होते हुए, गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड इट्स एडवाइजर एंड द वैल्यूएटर टू असरटेन इफ LIC शुड बी वैल्यूड एट 10 ट्रिलियन और मोर। तो जोमेटो को देखते हुए LIC के लिए भी गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली बिकमिंग सो एम्बिशियस। जोमेटो की IPO के बाद में, स्टेलर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बाद में, जोमेटो का जो वैल्यूएशन था वो अप्रॉक्सीमेटली 1 ट्रिलियन तक पहुंच गया था। तो उसी लाइन में गवर्नमेंट ने भी अपने वैल्यूअर्स से, अपने एडवाइजर से पूछा है क्या LIC के केस में भी ये हो सकता है, वेदर इट इज़ पॉसिबल कि हम LIC का जो वैल्यूएशन है वो IPO के बाद 10 ट्रिलियन तक का ले जा सकते हैं कि नहीं। द गवर्नमेंट इज लुकिंग टू ऑफलोड अबाउट 10% स्टेक इन LIC थ्रू IPO। तो 10% हम ये कह सकते हैं शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट सेल करने का प्लान कर रही है थ्रू IPO इन केस ऑफ LIC, और उसी के लिए गवर्नमेंट want to have the highest valuation, and at that valuation government stands to net at least rupees 1 trillion from this
प्रपोज्ड आईपीओ। और अगर 10 ट्रिलियन का वैल्यूएशन पर अगर ये आईपीओ इशू होता है तो गवर्नमेंट करीब से करीब 1 ट्रिलियन का पैसा या 1 ट्रिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है थ्रू दिस IPO, and definitely which will boost the center efforts to meet its disinvestment target of 1.75 trillion जो कि गवर्नमेंट ने सेट किया है फॉर दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर 22। सो 1.75 ट्रिलियन का टारगेट फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर सेट किया गया है थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीडिंग्स। तो अगर 10 ट्रिलियन के वैल्यूएशन पे LIC का IPO होता है तो 1 ट्रिलियन का तो कलेक्शन, या हम बोल सकते हैं कि more than 50% collection will come only from the LIC IPO। तो गवर्नमेंट को अपना जो टारगेट है वो अचीव करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। अगर अभी तक की बात करें तो सो फार गवर्नमेंट हैज़ मॉप्ड अप जस्ट 9,110 crore फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट एंड डेफिनेटली विल रिसीव अनदर 2,700 crore when Air India sale will be completed। तो अप्रॉक्सीमेटली 11,000 या 12,000 करोड़ की प्रोसीडिंग्स गवर्नमेंट ने रिसीव करी हैं अभी तक। और अगर LIC का IPO इस फाइनेंशियल ईयर में हो जाता है और इसी वैल्यूएशन पर होता है जिस पर गवर्नमेंट टारगेट कर रही है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट विल बी एबल टू अचीव इट्स टारगेट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीडिंग्स वेरी ईजली। और अगर LIC के मार्केट कैप की बात करें तो LIC में हैव $133 billion market cap। And if we talk about the top listed life insurance companies in India, HDFC is one of the highest valued company in terms of life insurance, followed by SBI Life Insurance, ICICI Prudential, and Max Financial. So these are the top 5 companies or top 5 insurance players in India in terms of market capitalization. If we talk about the top 5 listed companies in India in terms of market capitalization, then Reliance is at number 1 position, followed by TCS, HDFC Bank, Infosys, and Hindustan Unilever. So these are the top 5 companies in terms of market valuation in India. If we talk about the top 5 global life insurance companies, so Ping An Insurance Group, that is having the market capitalization of $152 billion, is topping the position, followed by AIA Group Limited, China Life Insurance Company Limited, EXA, and MetLife Insurance. So these are the top 5 global life insurance companies. Now let us look into the next clip. Coal crisis comes in a way of small steel firms recovery। तो coal shortage की वजह से जो small, medium and secondary steel producers हैं, they are getting so much affected that accounts for more than 1/3 of steel production। अगर हम ये small, medium और secondary steel producers की बात करें तो इंडिया में ये approximately 1/3 constitute करते हैं total steel production का, and definitely are at a pre-pandemic level of output in the very first 5 months of this financial year। और जो कोल की जो करंट क्राइसिस चल रही है, so definitely ये करंट क्राइसिस जो कोल की है इसकी वजह से इन सारे स्मॉल, मीडियम और सेकेंडरी स्टील जो प्रोड्यूसर्स हैं इनकी रिकवरी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। कोविड की वजह से स्मॉल, मीडियम और सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर्स वर वेरी मच अफेक्टेड, नंबर ऑफ रीजंस। डिमांड भी नहीं थी, लिक्विडिटी भी नहीं थी मार्केट में, जो उनकी क्रेडिट साइकिल थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, कई सारे जो कंपनीज थी वो डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन में भी आ गई थी। और अब चूँकि हम पोस्ट पैंडमिक का एरा कह सकते हैं, उसमें हम रिकवर कर रहे हैं, इंडियन इकॉनमी भी रिकवरी की स्टेज पर स्टार्ट हो चुकी है। उस केस में कोल का जो क्राइसिस है इन छोटी कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा डेट्रीमेंटल फैक्टर हो सकता है, एंड डेफिनेटली दैट विल इम्पैक्ट देयर स्पीडी रिकवरी। कोल की शॉर्टेज बड़ी कंपनी सेल और TSL ग्रुप जैसी जो बड़ी कंपनीज हैं उनको तो इम्पैक्ट कर ही रही है, लेकिन अगर यही सिचुएशन बहुत ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू रही तो इन दैट केस स्मॉल, मीडियम एंड सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर मे नॉट बी एबल टू रिकवर वेल। सो क्रूड स्टील प्रोडक्शन डिक्लाइन बाय ओवर 24% ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 months ऑफ फाइनेंशियल ईयर बिकॉज ऑफ द प्री पैंडमिक।
बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक सिचुएशन। और पैंडेमिक फर्स्ट वेव, कोरोना की फर्स्ट वेव में 24% तक का स्टील प्रोडक्शन फॉल किया था इन द वेरी फर्स्ट 5 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21। और इसके बाद से कंटिन्यूसली अगर मैं एमएसएमई सेक्टर की बात करें तो एमएसएमई सेक्टर वॉज वेरी मच अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ लिक्विडिटी, बट नाउ इट हैज़ स्टार्टेड इंक्रीजिंग। बट उससे पहले रिकवर होता या इंक्रीज करता प्रोडक्शन, कोल की शॉर्टेज ने दोबारा से सिचुएशन को चैलेंजिंग बना दिया। नाउ लेट अस सी हाउ गवर्नमेंट विल एक्चुअली टेक सर्टेन मेजर्स टू इम्प्रूव दिस कोल शॉर्टेज सिचुएशन। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर लिए हैं, हमने डिस्कस भी किए हैं, बट उनका इम्पैक्ट आते आते अभी फ़िलहाल के लिए टाइम लगेगा। और उस टाइम तक हो सकता है जो सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर्स है दे मे गेट worsen in terms of their financial situation. Now let us look into the next clip. Yoga can get discount on insurance premium. So Insurance Regulatory and Development Authority, in short we call it IRDAI. तो जो इंश्योरेंस रेगुलेटर हैं is now going to allow the insurance companies or the insurers to offer the wellness program along with the life insurance policies, and that can earn reward points for policy holders. और ये reward points जो होंगे that can be redeemed for getting the discount during the renewable. और इसके लिए जो रेगुलेटर है उसने फ़िलहाल के लिए एक ड्राफ्ट सर्कुलर इशू किया है इंश्योरेंस कंपनीज़ को। उनसे उनका फीडबैक मांगा है, पूछा है कि क्या ये प्रपोजल एप्लीकेबल है, क्या इसको अप्लाई किया जा सकता है before issuing the final guideline as in the norm. So insurance companies have been requesting the regulator for some time to allow them to offer wellness initiative. तो wellness initiative के तहत क्रेडिट पॉइंट्स हम बोल सकते हैं या रिवॉर्ड पॉइंट्स भी बोला जा सकता है, पॉलिसी होल्डर्स अर्न करेंगे और उस रिवॉर्ड पॉइंट्स को पॉलिसी होल्डर पॉलिसी के रिन्यूएबल के टाइम पर यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट द डिस्काउंट ऑन द प्रीमियम्स। And definitely it will be voluntary for the policy holders to choose the wellness products. और इवन इंश्योरेंस जो कंपनीज है उनको भी इस बात की लीवरेज दी जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी कि या तो वो वेलनेस प्रोग्राम खुद ऑफर करें या वो किसी थर्ड पार्टी से एसोसिएट करके भी या थर्ड पार्टी से कोलैब करके भी वेलनेस प्रोग्राम ऑफर कर सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज का ये फोटे नहीं है, ये डोमेन नहीं है वेलनेस, तो वो थर्ड पार्टी से भी कोलैबोरेट कर सकती हैं। वेलनेस प्रोग्राम कैन बी ऑफर्ड एज अ राइडर एड ऑन ऑप्शन अंडर द पॉलिसी। डेफिनेटली इट विल नॉट बी मैंडेटरी फॉर द पॉलिसी होल्डर्स टू choose wellness products. Third party name logo cannot be used in advertisement as per the current guideline. तो थर्ड पार्टी केवल सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करेगी, उसके लोगो को या उसके गुडविल को इंश्योरेंस कंपनीज यूज़ नहीं कर पाएंगी, टैप नहीं करेंगी फॉर एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट, जिससे कि जो कंज्यूमर्स हैं, जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, पोटेंशियल पॉलिसी होल्डर्स हैं, वो मिसलीड ना हो। एंड नो लायबिलिटी बाय इंश्योरेंस रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय थर्ड पार्टी। और ये भी होगा कि थर्ड पार्टी के एसोसिएशन में अगर इंश्योरेंस कंपनीज वेलनेस प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं तो इंश्योरेंस कंपनीज की कोई लायबिलिटी नहीं होगी क्वालिटी ऑफ वेलनेस प्रोग्राम को लेकर के। पॉलिसी होल्डर्स ये नहीं कह सकते कि इंश्योरेंस कंपनी ने उस क्वालिटी पैरामीटर के अकॉर्डिंग सर्विसेज ऑफर नहीं करी। दैट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द थर्ड पार्टी, अगर थर्ड पार्टी के कोलैबोरेशन से इस तरह के वेलनेस प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं। हालांकि इंश्योरेंस हैव टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज ऑफर्ड बाय द थर्ड पार्टी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो ऐसे ही बस एक काम चलाऊ काम करते हैं। उन्हें मॉनिटर करना पड़ेगा कि क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही हैं पॉलिसी होल्डर्स को कि नहीं। तो दिस विल बी अ वेरी गुड अप्रोच, दिस इज़ अ वेरी गुड अप्रोच बाय IRDAI। ये इंश्योरेंस कंपनीज को भी नए डोमेन में लाने के लिए प्रमोट करेगा, एक नई प्रोडक्ट लाइन स्टार्ट होगी। अपार्ट फ्रॉम इट जो कंज्यूमर्स हैं उनमें भी थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ेगी वेलनेस को लेकर के, मेंटल हेल्थ को लेकर के। तो हम ये कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट इन मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग कैन बी सीन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसी होल्डर। अपार्ट फ्रॉम इट पॉलिसी के जो पेनिट्रेशन है या हम कह सकते हैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट का जो पेनिट्रेशन है वो भी बढ़ेगा। तो इंश्योरेंस सेक्टर को भी अपनी पॉलिसी सेल करने में आसानी है, हम बोल सकते हैं उनका पेनिट्रेशन बढ़ेगा, उनका बिजनेस भी बढ़ेगा, पॉलिसी होल्डर्स
को भी, तो दिस विल बी द विन विन सिचुएशन। तो इकोनॉमिक रिकवरी की सिचुएशन में इस तरह की इनिशिएटिव, इंश्योरेंस सेक्टर जो अफेक्ट हुआ है पैंडेमिक से, उससे रिकवरी में भी हेल्प करेगा। इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन अगर हम देखें इंडिया में तो बहुत कम है, बहुत कम है इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन। तो मे बी बिकॉज ऑफ दीज इनिशिएटिव इंश्योरेंस पेनिट्रेशन में increase. So all these are the initiatives that are actually going to help the insurance companies, government, public, as well as the economy. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.